इस वक्त इस ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम के दोनों ओर से इस ऐतिहासिक बैंड के सुरीली धुन के साथ सभी टुकड़ियां शानदार तरीके से धीरे धीरे अपने गंतव्य विभिन्न टुकड़ियां स्वाधीनता दिवस परेड में विभिन्न गर्व के साथ भाग ले रही हैं। स्वाधीनता दिवस परेड में विभिन्न गर्व के साथ भाग ले रही हैं। स्वाधीनता दिवस परेड में विभिन्न गर्व के साथ भाग ले रही हैं। स्वाधीनता दिवस परेड में के साथ भाग ले रही हैं। से कदम स्वाधीनता दिवस परेड में के साथ भाग ले रही हैं। से कदम स्वाधीनता दिवस परेड में शानदार तरीके से अपने अपने गंतव्य की ओर अग्रसर स्वाधीनता दिवस परेड में शानदार तरीके से अपने बैंड की ओर अग्रसर सभी टुकड़ियों को प्रेरित करती हुई बैंड की ओर अग्रसर सभी टुकड़ियों को प्रेरित करती हुई बैंड की नेताजी स्टेडियम के चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य स्वाधीनता दिवस 2023 परेड के परेड कमांडर Army contingent is led by Lieutenant Tushar Thakur, a newly commissioned officer of the 8th Battalion, the Sikh Regiment. The battalion has participated in various operations and brought laurels to the nation. For its outstanding display of courage during Operation Vijay, the battalion was awarded the Battle of Honor, Tiger Hill, and Theatre Honor, Kargil. अगली टुकड़ी है the Indian Navy. The naval contingent is led by Lieutenant Akansh Srivastava. Lieutenant Akansh got commissioned in the Indian Navy in 2019. The naval contingent is led by Lieutenant Akansh Srivastava. Lieutenant Akansh got commissioned in the Indian Navy as country officer. The platoon consists of 15 Indian naval sailors of various branch and units of the naval component of Andaman and Nicobar Command. The component provides all logistical and administrative support to naval ships which are sent on deployment. The next contingent, Indian Air Force.
The Air Force contingent is led by Squadron Leader Wesley Benito. He is qualified in Pilatus PC-7 Mark II aircraft and Dornier aircraft. Within his short service in the Air Force, he has clocked more than 2,100 hours of flying, which is the highest among his batchmates. The Air Force component was established in December 2001. The Air Force component commander controls, directs, and monitors all air operations and air exercises. The next contingent is Indian Coast Guard. The Indian Coast Guard platoon, comprising of 15 personnel, is commanded by Assistant Commandant Ajay Kumar. He joined the service in 2020. The men of Indian Coast Guard, standing in the parade in pristine whites, epitomize selfless service, pride in uniform and resilient conduct against all challenges. The Indian Coast Guard's motto is Vayam Raksham, which means we protect. अगली टुकड़ी अंडमान निकोबार पुलिस. The Andaman and Nicobar Police has a strength of 5,008 posts of various ranks. There are 24 police stations, 21 outposts, 12 Jarawa protection posts, 23 fire stations, 25 police radio, 81 VHE stations, and 25 HF stations in the islands. In the Independence Day Parade 2023, 7 platoons of the Andaman and Nicobar Police are participating, out of which the Dog Squad is participating in the parade for the first time. अगली टुकड़ी है भारत आरक्षी वाहिनी अंडमान तथा निकोबार पुलिस. भारत आरक्षी वाहिनी का गठन केंद्रीय पुलिस बलों के अनुरूप हुई. इस वाहिनी के जवान मुख्य रूप से कानून एवं व्यवस्था, अनवरत सुरक्षा, घुसपैठ विरोधी गतिविधि तथा एलओपी तिलोंग चौंग में स्थायी ड्यूटी में तैनात हैं. सुनामी के दहशत तबाही के बाद लोगों के बचाव एवं गहत हेतु इस बल के जवानों ने सराहनीय कार्य किया. आम लोगों की निशुल्क सेवा ड्यूटी के प्रति समर्पण की भावना तथा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2009 में भारत आरक्षी वाहिनी IRBN को द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय का प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ. IRBN की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं इंस्पेक्टर रशीदा. The next contingent is Andaman and Nicobar Ladies Police Armed. The first batch of 12 women police constables was recruited in the year 1973, a great example of women empowerment. They have served the department as in CID, Special Armed, Jarawa Protection, Traffic Unit, Security Unit, Forensic Science Laboratory, Police Marine Force, Immigration Unit, etc. Andaman and Nicobar Ladies Police Armed, led by Sub-Inspector Agnes Bartoloma. अगली टुकड़ी अंडमान निकोबार अग्निशमन सेवा. अंडमान निकोबार अग्निशमन सेवा अंडमान निकोबार पुलिस बल का एक अभिन्न अंग है. अंडमान निकोबार फायर सर्विस की टुकड़ी में 6 लीडिंग फायरमैन एवं 9 फायरमैन हैं, जिसकी अगुवाई कर रही हैं सब इंस्पेक्टर कन्नगी. जनवरी 2023 से अग्निशमन सेवा ने 296 फायर कॉल्स एवं 357 स्पेशल सर्विस कॉल्स को अटेंड किया और 78.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को बचाया गया. आपातकाल के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ अंडमान निकोबार फायर सर्विस नियमित रूप से फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और आपदा प्रबंधन तैयारी पर आम नागरिकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है. फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग और आपदा प्रबंधन तैयारी पर आम नागरिकों, शिक्षकों. स्वाधीनता दिवस प्रशिक्षण प्रदान 2023 परेड में सुरीली धुन बजाती हुई सभी टुकड़ियों को प्रेरित कर रही हैं इंडियन आर्मी बैंड. प्रेरणा वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो के साथ सिख रेजिमेंट की 8वीं बटालियन का पाइप बैंड स्वाधीनता दिवस 2023 परेड में भाग ले रही हैं. अगुवाई कर रहे हैं नायब सूबेदार पवित्र सिंह. ये वो बटालियन है जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में टाइगर हिल को पाकर जीत हासिल की. नेवल बैंड INS जारावा के नेवल बैंड की स्थापना 1985 में हुई थी. जारावा बैंड ने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस, नेवी डे एवं सिटी परेड जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर अपना प्रदर्शन दिया है. नेवल बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन मानिकम एस. महत्वपूर्ण अवसर पर अपना प्रदर्शन दिया है.
लक्षद्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी.के. जोशी जी इस वक्त राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। महोदय एडमिरल डी.के. जोशी जी इस वक्त राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल हर घर तिरंगा अभियान जिसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था के तहत राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में भी माननीय उपराज्यपाल महोदय तिरंगा फहराएंगे। के तहत राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में भी माननीय उपराज्यपाल महोदय तिरंगा फहराएंगे। के तहत राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में भी माननीय उपराज्यपाल महोदय तिरंगा फहराएंगे। Police Brass Band. Andaman and Nicobar Police Brass Band is the first contingent of our Union Territory established in the year 1953. The Andaman and Nicobar Police Platoon has played very significant role in various parades of Andaman and Nicobar Police. They are also utilized for various official functions as well as for law and order duties. Assistant Sub-Inspector Kishore Kumar is the platoon commander of Andaman and Nicobar Police Brass Band. Next band, Andaman and Nicobar Police Ladies Pipe Band. अंडमान व निकोबार पुलिस में महिलाओं की पाइप बैंड की स्थापना 25 अगस्त 2014 में की गई थी। निर्माण के बाद से ही महिलाओं का इस दल ने गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं का यह पाइप बैंड ने सरकारी एवं जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया है। इस दल का नेतृत्व कर रही हैं इंस्पेक्टर शांति अर्जुन। सरकारी एवं जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया है। इस दल का नेतृत्व कर रही स्वाधीनता दिवस 2023 परेड में आकाश से पुष्प वर्षा करेंगी स्वाधीनता दिवस हेलीकॉप्टर and as these petals flutter down from the heaven, let us remember that they symbolize more than just their colorful beauty. They represent the sacrifices made by those who came before us, the struggles that we have overcome, and the dreams that continue to drive us forward. Each petal carries the hopes and aspirations of our people, and as they land, they leave behind a trail of inspiration and positivity. This helicopter of the Indian Coast Guard, CG-811, is being flown by Commandant Hitesh as pilot in command and Deputy Commandant S.K. Yadav as co-pilot. CG-811 is being flown by Commandant Hitesh as pilot in command. इस बार हम भारतीय अपना 77वां आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और इस साल हमारी स्वाधीनता दिवस का थीम है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। साथ ही इस वर्ष एक नया अभियान भी शुरू हुआ है, मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन। इस अभियान मेरी माटी मेरा देश का नारा है। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य उन साहसी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर महिलाओं को सम्मान और श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सेवा की। और बहादुर महिलाओं को सम्मान और श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सेवा की। और बहादुर महिलाओं को सम्मान और श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने पूरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सेवा की। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में। राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी। इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। काला पानी का भाव
सांस्कृतिक शब्द काल से बना है, जिसका अर्थ है मृत्यु अथवा समय। सेलुलर जेल में अनेक भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया। वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए किसी ने बहुत खूब कहा है, यदि मुश्किल है पीड़ा सहना, असंभव है तो सावरकर बनना। बरसों तक काल कोठरी में आसान नहीं है तप में तपना, यातनाएं सही जो आजीवन, जीवन भर याद रखेगा भारत, तुमको याद करेगा भारत, तुमको याद करेगा भारत। जीवन भर याद रखेगा भारत, तुमको याद करेगा भारत, तुमको याद करेगा भारत। आज हम स्मरण कर रहे हैं उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम स्मरण कर रहे हैं उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम स्मरण कर रहे हैं उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। रूहो तन होंगे जुदा, उनको तो होना ही है, हम तो बिछड़ों को मिला जाएंगे मरते मरते। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, अंग्रेजों के क्रूर सोच और दरिंदगी का सबसे बड़ा सबूत है, जहां आज़ादी के परवानों को दी गई कठोर यातनाओं के हजारों निशान आज भी मौजूद है। सबसे बड़ा सबूत है, जहां आज़ादी के परवानों इन यातनाओं को जब हम याद करते हैं तो आज भी हमारी रूह कांप उठती है। ऐसी कठोर यातनाओं को सहने के बावजूद वीर सपूत विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का काल कूट पीकर काल से कराल स्वयं मुझसे डरा है, मैं काल से नहीं। काले पानी का काल कूट पीकर काल से कराल वीर सावरकर ने कहा था, काल से कराल स्तंभों को झकझोर कर मैं बार बार लौट आया हूँ और फिर भी मैं जीवित हूँ, हारी मृत्यु है मैं नहीं। सेलुलर जेल की दीवारों पर सावरकर द्वारा लिखे गए एक एक शब्द आज भी युवा पीढ़ी को देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के एक अभिन्न अंग के रूप में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इस वक्त राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का क्षण ध्वज फहरा रहे हैं। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व का क्षण ध्वज फहरा रहे हैं। प्रत्येक बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे मरकर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सच धज सदा आबाद रहे। जन गण में उज्जवल देश प्रेम का जलाधी तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जन गण में उज्जवल देश प्रेम का जलाधी तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। जन गण में उज्जवल देश प्रेम का जलाधी तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में। कुछ ही पलों में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इस ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में पधारेंगे। तत्पश्चात इस भव्य परेड का शुभारंभ होगा। महोदय इस ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में पधारेंगे। तत्पश्चात देशभक्ति की पहचान करा दो
हर घर पर तिरंगा लहरा दो। इस अभियान ने देशवासियों में एक नई उमंग का संचार किया है और लोग उत्साह के साथ अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं। देशवासियों में एक तिरंगा हमारी आन बान और शान है। उत्साह के साथ अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं। देशवासियों में एक तिरंगा हमारी आन बान और शान है। उत्साह के साथ अपने घरों में तिरंगा फहरा रहे हैं। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों आज का से यह रंगा दिन तिरंगा अपनी ये पहचान है। शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों आज का यह दिन अपनी ये द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल D.K. जोशी जी ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में पधार चुके हैं। मुख्य द्वार पर उनका DC साउथ अंडमान एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा स्वागत। ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में पधार चुके हैं। मुख्य द्वार पर उनका DC साउथ अंडमान एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा स्वागत। Russia salute! Salame! Just! Russia salute! Salame! Just! 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 परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर विंग कमांडर राजीव मिश्रा की अगुवाई में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इस समय सभी टुकड़ियों के निरीक्षण के लिए धीरे धीरे अग्रसर। माननीय उपराज्यपाल महोदय का निरीक्षण वाहन इस वक्त सभी टुकड़ियों के निरीक्षण के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। सभी टुकड़ियां सुंदर पोशाक में सुसज्जित शानदार तरीके से माननीय उपराज्यपाल महोदय को सलामी देने के लिए बिल्कुल तैयार। सभी टुकड़ियां सुंदर पोशाक में सुसज्जित शानदार तरीके से
टुकड़ी द इंडियन आर्मी सिख रेजिमेंट प्लाटून अगुवाई कर रहे हैं लेफ्टिनेंट तुषार ठाकुर। अगली टुकड़ी द इंडियन नेवी अगुवाई कर रहे हैं लेफ्टिनेंट आकांक्ष श्रीवास्तव। द इंडियन एयरफोर्स की टुकड़ी अगुवाई कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर वेस्ली बेनेटो। द इंडियन कोस्ट गार्ड कंटिंजेंट अगुवाई कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट अजय कुमार। अंडमान निकोबार पुलिस आर्म्ड अगुवाई कर रहे हैं इंस्पेक्टर मिल्का मनास। IRBN की टुकड़ी अगुवाई कर रही है इंस्पेक्टर रशीदा। अंडमान निकोबार लेडीज पुलिस आर्म्ड अगुवाई कर रही हैं सब इंस्पेक्टर अग्नेस बार्थोलोमा। सभी टुकड़ियों को अपनी सुरीली धुन से प्रेरित कर रही हैं आर्मी बैंड नायक सूबेदार पवित्र सिंह की अगुवाई में। नेवी बैंड पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन एस मानिकम की अगुवाई में। पुलिस ब्रास बैंड ASI किशोर कुमार की अगुवाई में। अंडमान निकोबार पुलिस लेडीज पाइप बैंड इंस्पेक्टर शांति अर्जुन की अगुवाई में। अगली टुकड़ी है फायर प्लाटून सब इंस्पेक्टर कनगी की अगुवाई में। इसके बाद है कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल स्काउट ट्रूप एम प्रदीप की अगुवाई में। अगली टुकड़ी JNRM सीनियर डिवीजन नेवल NCC सीनियर कैडेट कैप्टन R श्रीहरि के अगुवाई में। इसके बाद है पुलिस डॉग स्क्वाड सब इंस्पेक्टर शाहीन नायर की अगुवाई में। JNRM सीनियर डिवीजन आर्मी NCC सीनियर अंडर ऑफिसर सुमित सोइनरम की अगुवाई में। NCS जूनियर डिवीजन आर्मी NCC बॉयज अधिराज कुमार की अगुवाई में। NCC केंद्र विद्यालय 1 D प्रवीण के नेतृत्व में। त्याग और समर्पण की भावना को मन में संजोए गर्व के साथ सभी टुकड़ियां इस परेड में भाग ले रही हैं। माननीय उपराज्यपाल जी की निरीक्षण वाहन धीरे धीरे अगली टुकड़ी की ओर अग्रसर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय स्काउट्स ट्रूप मोहम्मद अफजल के नेतृत्व में। अगली टुकड़ी है गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनियर डिवीजन नेवल NCC के पापा राव की अगुवाई में। खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनियर डिवीजन NCC आर्मी जयदीप सिंह की अगुवाई में। डाइट गैरत शर्मा गाइड ट्रूप इशिप्ता रॉय की अगुवाई में। इसके बाद है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय गाइड ट्रूप शैली खेस के नेतृत्व में। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गाइड ट्रूप पवानी राव की अगुवाई में। और हमारा अंतिम टुकड़ी कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल गाइड ट्रूप सथी सरकार के अगुवाई में। और इस प्रकार सभी टुकड़ियों के निरीक्षण के पश्चात माननीय उपराज्यपाल महोदय का निरीक्षण वाहन धीरे धीरे सलामी मंच की ओर अग्रसर। आज द्वीपवासियों के लिए गौरवशाली क्षण है जब हम स्मरण करते हैं उस ऐतिहासिक घटना को जब आजादी का परचम सबसे पहले इन द्वीपों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लहराया गया था। अस्तित्व हो आजादी का, हो प्रतीक स्वतंत्र आबादी का, ना जाने कितने इतिहास समेटे बैठा हूँ। मेरे अफसानों को गौर से पढ़ो, मैं स्वतंत्र भारत में गर्व से लहराता तिरंगा हूँ। सभी टुकड़ियों के निरीक्षण के पश्चात इस समय माननीय उपराज्यपाल महोदय का निरीक्षण वाहन सलामी मंच के ठीक सामने। इस समय माननीय उपराज्यपाल महोदय का निरीक्षण वाहन सलामी मंच के ठीक सामने।
आपके अभिभाषण के लिए तैयार है श्रीमान। पुरस्कार वितरण और आपके अभिभाषण के लिए तैयार है श्रीमान। और अब विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय के प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। सर्वप्रथम सराहनीय सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। इंस्पेक्टर टेक्निकल श्री शशि प्रकाश दुबे। श्री शशि प्रकाश दुबे तकनीकी 1 अक्टूबर 1992 में ASI रेडियो टेक्नीशियन के पद पर अंडमान निकोबार पुलिस रेडियो संगठन में शामिल हुए। वर्ष 1994 और 1995 के दौरान उन्हें VVIP दौरे के सिलसिले में वायरलेस संचार की स्थापना के लिए इंदिरा पॉइंट पर प्रतिनियुक्त किया गया। वे कठिन परिस्थितियों में जंगल से पैदल यात्रा करके सुदूर द्वीप तक पहुंचे और HF संचार लिंक स्थापित करने में सफल रहे। उन्होंने अंडमान निकोबार पुलिस में कार्मिक सूचना प्रणाली के सफल कार्यान्वयन में पहल कार्य के प्रति समर्पण, उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा एवं अपने पूरे करियर में बेदाग सेवा रिकॉर्ड को अंगीकार करते हुए इंस्पेक्टर टेक्निकल श्री शशि प्रकाश दुबे को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इन्हें ये पदक प्रदान करेंगे। इंस्पेक्टर टेक्निकल श्री शशि प्रकाश दुबे। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इन्हें ये पदक प्रदान करेंगे। इंस्पेक्टर टेक्निकल श्री शशि प्रकाश दुबे। ASI ड्राइवर N मगेश्वरन। ASI ड्राइवर श्री N मगेश्वरन PC ड्राइवर के रूप में अंडमान निकोबार पुलिस बल में शामिल हुए। उन्हें SAP और AP इकाइयों के तैनात वाहनों के बेड़े के संचालन के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के वाहनों को चलाने का कार्य सौंपा गया था। वर्ष 2004 में कैम्पबेल बे में तैनात रहते हुए सुनामी के दौरान उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया। घाटे से प्रभावित हुए बिना उन्होंने कई व्यक्तियों के खोज और बचाव में अंडमान निकोबार प्रशासन की सहायता की। उनके समर्पण और कठिन परिश्रम को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कर्मियों के प्रबंधन और वाहन तैनाती की अतिरिक्त दायित्व दी गई। कार्य के प्रति समर्पण, उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा एवं अपने पूरे करियर में बेदाग सेवा रिकॉर्ड को अंगीकार करते हुए ASI ड्राइवर श्री N मगेश्वरन को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इन्हें अब ये पदक प्रदान करेंगे। ASI ड्राइवर N मगेश्वरन। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इन्हें अब ये पदक प्रदान करेंगे। ASI ड्राइवर N मगेश्वरन। श्री निर्मल कुमार रॉय, पशु चिकित्सा कंपाउंडर, पशु चिकित्सा औषधालय मंगलूटान, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग। श्री निर्मल कुमार रॉय मंगलूटान के पशु चिकित्सा औषधालय में पशु चिकित्सा कंपाउंडर के पद पर कार्यरत है। आप पिछले 33 वर्षों से लगातार किसानों और मवेशियों के मालिकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पशुओं की अस्वस्थता की जानकारी मिलते ही आप किसी भी समय किसी भी प्रकार की पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सदैव अपने कार्यों के प्रति सक्रिय, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं।
आपके निस्वार्थ सेवा भावना और कर्मठता के कारण ही उस क्षेत्र के सभी तरह के मवेशियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिली है। कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के मंगलूटान स्थित पशु चिकित्सा औषधालय के पशु चिकित्सा कंपाउंडर श्री निर्मल कुमार रॉय को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री निर्मल कुमार रॉय, पशु चिकित्सा कंपाउंडर, पशु चिकित्सा औषधालय, मंगलूटान। राज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री निर्मल कुमार रॉय, पशु चिकित्सा कंपाउंडर, पशु चिकित्सा औषधालय, मंगलूटान। श्री अजय कुमार विश्वास, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य विभाग। श्री अजय कुमार विश्वास स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। आपने जारावा आदिम जनजातियों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के उन्मूलन तथा आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1998 के दौरान जब जारवा आदिम जनजाति विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित थे, तब एक डॉक्टर के साथ आपकी तैनाती कदमतला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई। पूर्वी समुद्र तट तथा अंडमान ट्रंक रोड के आसपास के इलाके में आदिम जनजातियों के विभिन्न बस्तियों का दौरा करने तथा उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवा प्रदान करने का दायित्व आपको सौंपा गया। इस बीच आपने सवेरे 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अपनी नियमित सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता का परिचय दिया। इसके अलावा आपने कदमतला क्षेत्र में क्षय रोग उन्मूलन में 100% सफलता हासिल करने में भी बहुमूल्य योगदान दिया है। उत्कृष्ट कार्यकुशलता, सक्रिय भागीदारिता एवं निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए स्वास्थ्य सेवा विभाग के फार्मासिस्ट श्री अजय कुमार विश्वास को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अजय कुमार विश्वास, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य विभाग। अजय कुमार विश्वास को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अजय कुमार विश्वास, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य विभाग। अजय कुमार विश्वास को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अजय कुमार विश्वास, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य विभाग। श्री बलबीर सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करमाटांग 10, मायाबंदर। श्री बलबीर सिंह शिक्षा विभाग में वर्ष 1994 से स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आप वर्ष 2014 से पहलगांव एवं करमाटांग 10 के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। आप शिक्षा विभाग में एक कर्मठ तथा कुशल शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आपने उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला के उपायुक्त के अधीन जनगणना अधिकारी, पंचायत चुनाव के मास्टर ट्रेनर, सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसके अलावा आपने अपने विद्यालय में राजनीति विज्ञान की कक्षाएं भी ली, जिसका परीक्षा परिणाम 25 से अधिक बार 100% रहा है। कार्य के प्रति आपकी समर्पण की भावना तथा उत्कृष्ट कार्य शैली की प्रशंसा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव ने भी की है। विशिष्ट कार्यशैली, कार्यों के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करमाटांग 10 के स्नातकोत्तर शिक्षक श्री बलबीर सिंह को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री बलबीर सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करमाटांग 10, मायाबंदर। प्रदान किया जाता है। श्री बलबीर सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करमाटांग 10, मायाबंदर। श्री बलबीर सिंह, स्नातकोत्तर शिक्षक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करमाटांग 10, मायाबंदर। श्री संदीप कुमार, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जनजाति कल्याण निदेशालय।
श्री संदीप कुमार जनजाति कल्याण निदेशालय में कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत है। आपने वर्ष 2013 में अंडमान तथा निकोबार जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने, वर्ष 2015 की शॉम्पेन जनजाति नीति तथा 2016 की संशोधित जारवा नीति के प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने अपनी कार्यकुशलता का परिचय देते हुए अकेले ही राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से जनजाति कल्याण मंत्रालय की छात्रवृत्ति स्कीम को क्रियान्वित किया। आपने कोविड-19 महामारी के दौरान स्थानीय आदिम जनजातियों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश और प्रोटोकॉल तैयार करने तथा उनके 100% टीकाकरण के कार्यों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपने जारावा जनजातियों के लिए बनाए गए अंग कथा पुस्तक का प्रारूप तैयार करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशिष्ट कार्यकुशलता एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए जनजाति कल्याण निदेशालय के कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी श्री संदीप कुमार को उप राज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री संदीप कुमार, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जनजाति कल्याण निदेशालय। उप राज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री संदीप कुमार, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, जनजाति कल्याण निदेशालय। श्री अनिरुद्ध मंडल, निरीक्षक जीडी, भारतीय आरक्षित वाहिनी, पुलिस अधीक्षक जिला, उत्तर तथा मध्य अंडमान का कार्यालय। श्री अनिरुद्ध मंडल भारतीय आरक्षित वाहिनी में निरीक्षक जीडी के पद पर कार्यरत है। आपने नियुक्ति के पश्चात अपनी बुनियादी प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित टेकनपुर के सीमा सुरक्षा बल अकादमी से प्राप्त की। वर्तमान में आप उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला के मायाबंदर स्थित पुलिस अधीक्षक जिला के कार्यालय में प्रभारी कंपनी कमांडर के रूप में तैनात है। आपको अपने 17 वर्षों की सेवा काल के दौरान उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपने उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला में घुसपैठ रोधी कार्यबल की स्थापना करने और प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको स्थानीय जंगल के ट्रैक तथा म्यांमारी घुसपैठियों की कार्यशैली के बारे में भी अच्छी जानकारी है, जिसकी वजह से हमें इस वर्ष अब तक 51 घुसपैठियों की धरपकड़ की जा सके। इसके अलावा आपने उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला पुलिस द्वारा फरवरी 2023 को विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयोजित सेडल पिक अभियान और जून 2023 को युवा कौशल विकास कार्यक्रम के हुनर नामक पहल के सफल आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यावसायिक कार्यकुशलता एवं नेतृत्व की क्षमता को अंगीकार करते हुए उत्तर तथा मध्य अंडमान स्थित पुलिस अधीक्षक जिला का कार्यालय के भारतीय आरक्षित वाहिनी के निरीक्षक श्री अनिरुद्ध मंडल को उप राज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अनिरुद्ध मंडल, निरीक्षक जीडी, भारतीय आरक्षित वाहिनी, पुलिस अधीक्षक, उत्तर तथा मध्य अंडमान का कार्यालय। श्री अनिरुद्ध मंडल, निरीक्षक जीडी, भारतीय आरक्षित वाहिनी, पुलिस अधीक्षक, उत्तर तथा मध्य अंडमान का कार्यालय। श्री अनिरुद्ध मंडल, निरीक्षक जीडी, भारतीय आरक्षित वाहिनी, पुलिस अधीक्षक, उत्तर तथा मध्य अंडमान का कार्यालय। श्री संदीप कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर, पुलिस रेडियो मुख्यालय। श्री संदीप कुमार सिंह वर्ष 2006 में सिपाही के रूप में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में शामिल हुए। वर्ष 2012 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस रेडियो संगठन में सीधी भर्ती के तहत आपकी नियुक्ति सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर के रूप में हुई। ग्रेट निकोबार के कैंपबेल बे स्थित पुलिस रेडियो स्टेशन में आपकी तैनाती के दौरान 26 सितंबर 2022 को कैंपबेल बे स्थित आरपीआरसी कॉलोनी के सुनामी शेल्टर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। आप उस वक्त ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। उसके बावजूद आपने उस आग की भीषण स्थिति को भांपते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी मुस्तैदी के साथ तुरंत ही आग को बुझाने के काम में जुट गए। आप बिना किसी अग्निशमन कर्मियों और बिना किसी सुरक्षा उपकरणों की सहायता से आग को आसपास के घरों में
फैलने से रोकने तथा उसे बुझाने में कामयाब हुए। असाधारण साहस एवं सूझबूझ को अंगीकार करते हुए पुलिस रेडियो मुख्यालय के सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर श्री संदीप कुमार सिंह को उप राज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री संदीप कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर पुलिस रेडियो मुख्यालय। प्रदान किया जाता है। श्री संदीप कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर पुलिस रेडियो मुख्यालय। अंडमान तथा निकोबार कमान एवं तटरक्षक क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार के दल, विंग कमांडर राहुल शर्मा, 27993L फ्लाइंग पायलट, भारतीय वायुसेना यूनिट मुख्यालय AFC, कमांडर हनुमंतु कृष्णा चैतन्य, कमांडिंग ऑफिसर INS कारदीप ननकौरी, यूनिट मुख्यालय NAVC, 931-935B सर्जेंट अंकुर, सर्जेंट भारतीय वायुसेना, ट्रेड फ्लाइट गनर यूनिट मुख्यालय AFC, कमांडेंट JG रोहित कुलकर्णी, 0811Q कमांडिंग ऑफिसर ICGS, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राहुल शर्मा, कमांडर हनुमंतु कृष्णा चैतन्य, सर्जेंट अंकुर और भारतीय तटरक्षक के कमांडेंट JG रोहित कुलकर्णी ने जून 2023 को ट्रिंकेट आइलैंड के जंगल में लगी आग से वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं तथा वहां पर बसे परिवारों को बचाने तथा जंगल में फैली आग को बुझाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। असाधारण साहस एवं सूझबूझ, उत्कृष्ट कार्यकुशलता तथा नेतृत्व क्षमता को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार कमान एवं तटरक्षक क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार के दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अंडमान तथा निकोबार कमान एवं तटरक्षक क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार दल, अंडमान तथा निकोबार कमान एवं तटरक्षक क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार दल, विंग कमांडर राहुल शर्मा, फ्लाइंग पायलट, विंग कमांडर राहुल शर्मा, फ्लाइंग पायलट, विंग कमांडर राहुल शर्मा, फ्लाइंग पायलट, कमांडर हनुमंतु कृष्णा चैतन्य, कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर हनुमंतु कृष्णा चैतन्य, कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर हनुमंतु कृष्णा चैतन्य, कमांडिंग ऑफिसर, सर्जेंट अंकुर, सर्जेंट भारतीय वायुसेना, सर्जेंट अंकुर, सर्जेंट भारतीय वायुसेना, सर्जेंट अंकुर, सर्जेंट भारतीय वायुसेना, कमांडेंट JG रोहित कुलकर्णी, 0811Q कमांडिंग ऑफिसर ICGS, कमांडेंट JG रोहित कुलकर्णी, 0811Q कमांडिंग ऑफिसर ICGS, कमांडेंट JG रोहित कुलकर्णी, श्री गोविंद बिहारी माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्थापक पशु पक्षी संरक्षण संस्था। श्री गोविंद बिहारी माथुर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं और पशु पक्षियों के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं।
आप स्वेच्छा से पशु पक्षियों को भोजन खिलाने और उनकी देखभाल का कार्य करते हैं। आप रोज सुबह 20 किलोग्राम गेहूं लेकर घर से निकलते हैं और राजीव गांधी क्रीड़ा परिसर, बस अड्डा, घंटाघर के आसपास के क्षेत्रों में कबूतरों को दाना खिलाते हैं, जिसके कारण आप बर्ड मैन ऑफ द आइलैंड के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। आपने पशु पक्षी संरक्षण संस्था नामक एक गैर सरकारी संगठन की भी स्थापना की है। आपने पोर्ट ब्लेयर के 7 विद्यालयों में पक्षियों के लिए पेयजल स्टैंड स्थापित कर पक्षियों के कल्याण का कार्य किया है। आपने पशु पक्षियों से स्नेह करने तथा उनकी सहायता करने और उन्हें भोजन देने के बारे में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पशु पक्षियों के प्रति उदारता एवं निस्वार्थ सेवा भावना को अंगीकार करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं पशु पक्षी संरक्षण संस्था के संस्थापक श्री गोविंद बिहारी माथुर को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री गोविंद बिहारी माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्थापक, पशु पक्षी संरक्षण संस्था। प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री गोविंद बिहारी माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्थापक, पशु पक्षी संरक्षण संस्था। श्री अंकित यादव, आईएएस उपायुक्त उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला। श्री अंकित यादव भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में आप उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला के उपायुक्त हैं। सार्वजनिक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने की दिशा में आप नागरिक हितैषी भावना के साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। आपने उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला में काफी समय से लंबित विभागीय तथा निजी राजस्व मामले को समय पर निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने मनरेगा सहित भूमि विकास, सड़कों, तालाबों, मिट्टी के बांध के निर्माण और बागवानी जैसे विकास के कार्यों पर विशेष ध्यान देते हुए 46,701 श्रम दिवसों के सृजन के लिए 38 प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस जिले में श्रम बजट के अनुसार लक्षित श्रम दिवसों की संख्या 76,701 से बढ़कर 1.5 लाख से अधिक हो जाएगी। आपके अथक प्रयासों के कारण ही उत्तर तथा मध्य अंडमान जिले में लंबे समय से लंबित क्वारी उत्पादों की कमी को पूरा करने के लिए क्वारी ब्लॉक्स की ई-नीलामी करने में मदद मिली। आपके इन प्रयासों से ही निर्माण कार्यों के लिए पत्थर व बजरी की कमी को शीघ्र पूरा किया जा सका। उत्कृष्ट कार्य कुशलता, कर्तव्य निष्ठा एवं नेतृत्व की क्षमता को अंगीकार करते हुए उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला के उपायुक्त श्री अंकित यादव भारतीय प्रशासनिक सेवा को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री अंकित यादव आईएएस उपायुक्त उत्तर तथा मध्य अंडमान जिला की अनुपस्थिति में सहायक आयुक्त मायाबंदर श्री वैभव रिखारी उनकी ओर से यह प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे। अनुपस्थिति में सहायक आयुक्त मायाबंदर श्री वैभव रिखारी उनकी ओर से यह प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे। डॉक्टर अनिल अग्रवाल, दैनिक्स विशेष सचिव कार्मिक एवं मिशन निदेशक। डॉक्टर अनिल अग्रवाल 1997 बैच के दैनिक्स कैडर के अधिकारी हैं। आपने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में आप अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में विशेष सचिव कार्मिक एवं मिशन निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपके समर्पण की भावना, कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों तथा कुशल नेतृत्व के कारण ही वर्ग ख और ग श्रेणी के लगभग 5,000 पदों को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ भरने की प्रक्रिया को
सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका, जो कि इस द्वीप समूह के इतिहास में पहली बार सबसे अधिक संख्या में पदों की भर्ती की जाने वाली प्रक्रिया होगी। आपने कोविड महामारी के दौरान इस संस्थान में देश का पहला प्लाज्मा डोनेशन सुविधा उपलब्ध कराने में भी उल्लेखनीय योगदान देकर अपनी व्यावसायिक कार्यकुशलता का परिचय दिया। इस सुविधा के उपलब्ध हो जाने की वजह से कोविड से ग्रसित सैकड़ों गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकी। उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता, कर्तव्य निष्ठा एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के विशेष सचिव कार्मिक एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर अनिल अग्रवाल दैनिक्स को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल दैनिक्स विशेष सचिव कार्मिक एवं मिशन निदेशक अंडमान तथा निकोबार प्रशासन किया जाता है। डॉक्टर अनिल अग्रवाल दैनिक्स विशेष सचिव कार्मिक एवं मिशन निदेशक अंडमान तथा निकोबार प्रशासन डॉक्टर आर कृपाशंकर वरिष्ठ वैज्ञानिक मत्स्य संसाधन प्रबंधन केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान डॉक्टर आर कृपाशंकर मत्स्य संसाधन प्रबंधन केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक है। आपने अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के लिए मत्स्य पालन विकास और इसके क्रियान्वयन में प्रमुख कार्य क्षेत्रों की पहचान करके द्वीपों के मत्स्य क्षेत्र के पुनर्गठन की योजना तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने इस द्वीप समूह के हितधारकों के लाभ के लिए मत्स्य चारों के उत्पादन तथा सजावटी मछलियों के उत्पादन के बारे में द्वीप स्तरीय तकनीकों के व्यवसायीकरण के कार्यों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। आपने इस द्वीप समूह में अनुसंधान कार्यों के माध्यम से सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं और नीति दस्तावेजों में 80 से अधिक शोध प्रकाशनों को भी प्रकाशित किया। उत्कृष्ट कार्यकुशलता एवं मत्स्यिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान के मत्स्य संसाधन प्रबंधन के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर कृपाशंकर को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर आर कृपाशंकर वरिष्ठ वैज्ञानिक मत्स्य संसाधन प्रबंधन केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान वरिष्ठ वैज्ञानिक मत्स्य संसाधन प्रबंधन केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान वरिष्ठ वैज्ञानिक मत्स्य संसाधन प्रबंधन केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान सुश्री आर कस्तूरीबाई शतरंज खिलाड़ी। सुश्री आर कस्तूरीबाई पोर्ट ब्लेयर के राजकीय बहुउद्देशीय निदर्शन विद्यालय की कक्षा 9वीं की विद्यार्थी है। आपने शतरंज के खेल में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक और पुरस्कार जीतकर इस द्वीप समूह का गौरव बढ़ाया है। आपने 13 से 20 जुलाई 2023 तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए आयोजित 17वीं एशियन विद्यालय शतरंज चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपने इस चैंपियनशिप में रजत तथा कांस्य पदक जीतकर न केवल इस द्वीप समूह का नाम रोशन किया बल्कि पूरे भारतवर्ष का भी गौरव बढ़ाया है। आपने तमिलनाडु के होसूर में 27 से 31 जनवरी 2023 तक आयोजित 11वीं राष्ट्रीय विद्यालय शतरंज चैंपियनशिप में भी भाग लिया। आपने इस प्रतियोगिता के 17 वर्ष से कम आयु वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त कर विश्व एवं एशियन विद्यालय शतरंज चैंपियनशिप 2023 में अपनी जगह बनाई। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा को अंगीकार करते हुए पोर्ट ब्लेयर के राजकीय बहुउद्देशीय निदर्शन विद्यालय की कक्षा 9वीं की विद्यार्थी सुश्री आर कस्तूरीबाई को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री आर कस्तूरीबाई शतरंज खिलाड़ी। सुश्री आर कस्तूरीबाई को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री आर कस्तूरीबाई शतरंज खिलाड़ी। सुश्री आर कस्तूरीबाई को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री आर
श्री सी अरविंद, दैनिक्स सचिव कार्मिक एवं वित्त, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन। श्री सी अरविंद एक दैनिक्स अधिकारी हैं और सिविल सेवा की परीक्षा आपने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से उत्तीर्ण की है। वर्तमान में आप अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कार्मिक एवं वित्त सचिव हैं। सेवा में शामिल होने से पूर्व आप इस द्वीप समूह के पहले प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आपने जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में लेक्चरर के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा आपने सुनामी आपदा के बाद स्वेच्छा से कार निकोबार जिले में 4 महीने तक अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान किया है। प्रशासन के अधीन रिक्त पदों से भरने से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आपने प्रशासन के कार्मिक विभाग की टीम का सफल नेतृत्व किया और मिशन मोड पर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक आयोजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुशल नेतृत्व, उत्कृष्ट कार्य कुशलता एवं कर्तव्य निष्ठा को अंगीकार करते हुए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के कार्मिक एवं वित्त सचिव श्री सी अरविंद दैनिक्स को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री सी अरविंद दैनिक्स सचिव कार्मिक एवं वित्त, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री सी अरविंद दैनिक्स सचिव कार्मिक एवं वित्त, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री सी अरविंद दैनिक्स सचिव कार्मिक एवं वित्त, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री सी अरविंद। और अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी.के. जोशी जी द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। और अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी.के. जोशी जी द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। और अब द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय एडमिरल डी.के. जोशी जी आज 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ आज मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। हार्दिक बधाई जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। साथ ही जिन्होंने उन वीरों को भी कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने बाद के वर्षों में देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान किया। आज इस कर्तव्य काल में देश के साथ हमारा यह द्वीप समूह माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में देश के शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पिछले महीने ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 710 करोड़ निवेश वाले पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन द्वारा द्वीपवासियों की लंबे समय से चली आ रही अपेक्षा को पूरा किया। इससे पहले OFC के ऑपरेशनलाइजेशन व अन्य दूरदर्शी व महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के द्वारा हमारे द्वीप विकसित भारत के रियलाइजेशन के लिए तीव्रता से परियोजनाओं के साथ ही द्वीपों में विकसित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत MSP में 100% से अधिक वृद्धि के साथ कोबरा प्रोक्योरमेंट से किसानों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। 100% से अधिक माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन तथा द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह द्वीप समूह पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 95,000 करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, जो कि अभूतपूर्व व ऐतिहासिक है, के द्वारा ग्लोबल ग्रोथ डेस्टिनेशन बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर हुआ है। ऐतिहासिक है। इस द्वीप समूह की मुख्य भूमि से दूरी और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस के होते हुए भी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 44 में से 15
यानी कि 34% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 1232 करोड़ रुपए निवेश से कैनी सबमरीन ओएफसी परियोजना निर्धारित 2 वर्ष से पहले कार्यान्वित होकर द्वीपों की स्ट्रेटेजिक नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध हुई है। 203 करोड़ निवेश से हम्फ्री स्ट्रेट पर आजाद हिंद फौज सेतु और 138 करोड़ रुपए के निवेश से सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की दिशा में 20 मेगावाट सोलार पावर प्रोजेक्ट्स जैसी परियोजनाओं ने विकास को बल दिया है। आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 29 परियोजनाएं यानी कि 66% ऐसी हैं जो कि समापन की ओर शीघ्रता से बढ़ते हुए द्वीप समूह की प्रगति को नए आयाम प्रदान करेंगी। इनमें 27 करोड़ निवेश से दिगलीपुर की कल्पोंग नदी पर फ्लोटिंग सोलार पैनल्स का कार्य भी प्रगति पर है। शिवपुर के आईएनएस कोहासा में 206 करोड़ रुपए के निवेश से पैसेंजर टर्मिनल व बेसिक फैसिलिटीज का कार्य पूर्ण होकर यह एयरपोर्ट सिविल ऑपरेशंस के लिए तैयार है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इन द्वीपों के नॉर्थ साउथ एक्सिस में लगभग 800 किलोमीटर फैलाव में 4 एयरपोर्ट्स हर 230 किलोमीटर के एवरेज डिस्टेंस पर उपलब्ध हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड व शिवपुर एयरपोर्ट्स में रनवे एक्सटेंशन पूरा होने पर यह चारों ड्यूअल यूज स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स 3 किलोमीटर प्लस रनवे से हर बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस में सक्षम और देश के लिए जियोपॉलिटिकल दृष्टि से एक गेम चेंजर सिद्ध होंगे। मुझे यहाँ यह बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 60 करोड़ रुपए के निवेश से शीघ्र ही सी प्लेन ऑपरेशंस आरंभ करने के लिए आरसीएस उड़ान स्कीम द्वारा पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड सेक्टर्स के लिए ऑपरेटर्स का चयन हो चुका है। साथ ही फिक्स्ड विंग सेवाओं को शीघ्र आरंभ करने के लिए पोर्ट ब्लेयर से शिवपुर, कार निकोबार और कैम्बल बे रूट्स पर भी ऑपरेटर्स का सिलेक्शन पूरा हो चुका है। नए 12 सीटर लार्ज कैपेसिटी सिकोर्स्की हेलीकॉप्टर्स द्वारा फ्लीट अपग्रेडेशन के हमारे प्रस्ताव को भी एसएफसी का फाइनेंशियल अप्रूवल मिल चुका है। इसके अतिरिक्त टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी व सर्विसेज सेक्टर में मेगापोर्ट, 4 आइलैंड्स का प्रोजेक्ट व नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल मेमोरियल के विकास हेतु कंसल्टेंट्स की नियुक्ति का कार्य प्रगति पर है। उत्तर व मध्य अंडमान तथा दक्षिण अंडमान में पैकेज 4 आइलैंड्स के 11 साइट्स का मास्टर प्लान फाइनल स्टेजेस में है। हम स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर पीपीपी मोड में इको फ्रेंडली रिजॉर्ट्स डेवलप करने तथा चैथम, वाइपर व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हेरिटेज टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही इनविजिबल बैंक रानी लक्ष्मीबाई शिला पर लाइट हाउस टावर का कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण होने की दिशा में प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की अनेक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिनमें प्रिलिमिनरी कॉस्टिंग हो गई है, विभिन्न क्लियरेंसेज, कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इत्यादि की प्रक्रिया विभिन्न चरणों पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार महत्वाकांक्षी जीएनआई प्रोजेक्ट में लगभग 80,000 करोड़ रुपए निवेश वाली अनेक दूरदर्शी परियोजनाएं जैसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट्स तथा टाउनशिप्स की स्थापना इन द्वीपों को इकोनॉमिक हब बनाने के साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने में फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होंगी। इनके अतिरिक्त अनेक परियोजनाएं
पॉलिसी डिसीशंस की कैटेगरी में आती हैं, जिनके इंटेंजिबल बेनिफिट्स अर्थव्यवस्था पर बहुगामी प्रभाव डालने के साथ साथ द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए आने वाले समय में बेंचमार्क होंगे। इस श्रेणी में 30 द्वीपों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट से मुक्त व वीज़ा ऑन अराइवल ई वीज़ा की सुविधा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। छोटे द्वीपों में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए नो डेवलपमेंट जोन को 50 मीटर से घटाकर 20 मीटर कर दिया गया है। फिशरीज तथा मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए द्वीप प्रशासन साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ डायरेक्ट सी एंड एयर ट्रांसपोर्ट द्वारा ट्रेड लिंक स्थापित करने की दिशा में प्रयत्नरत है। विगत 5 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के अतिरिक्त प्रशासन द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी व डेवलपमेंट की अनेक परियोजनाएं भी पूर्ण अथवा पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में है। लगभग 74 करोड़ रुपए के निवेश से ग्रामीण सड़कों का निर्माण व सुधार, गराचरमा में 24 करोड़ निवेश से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, मध्य अंडमान के बकुलतला में लगभग 13 करोड़ निवेश से हॉस्टल की सुविधाएं, स्टाफ क्वार्टर्स सहित ITI एकेडमिक ब्लॉक इत्यादि परियोजनाओं ने द्वीपों में विकास को गति प्रदान की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि द्वीपों के पुलिस प्रशासन ने 3 पुलिस मेडल और मेरिटोरियस अर्जित किए हैं। अंत में मैं परेड की मार्चिंग टुकड़ियों, स्कूली बच्चों तथा उपस्थित सभी महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रशस्त्र पत्र से सम्मानित सभी को बधाई देते हुए आशा करता हूं कि कर्तव्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं माननीय सांसद महोदय, PRI मेंबर्स, विभिन्न दलों के निर्वाचित प्रतिनिधिगण तथा उन सब का जिन्होंने प्रशासन को सहयोग दिया है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सिंकैन के नेतृत्व में अंडमान तथा निकोबार कमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव सिविल प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। इस जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव सिविल प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। इस स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के बहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है, ताकि विकसित भारत के सपने को साकार करने में न्यू अंडमान अथवा पूर्ण रूप से धन्यवाद और जय हिंद। और अब राष्ट्रगान होगा। शुभ आशा
आपका ध्यान हम आकाश की ओर करना चाहेंगे, जहां तिरंगे के सूचक के रूप में गुब्बारे लहरा रहे हैं इस वक्त। Congratulations. बहुत ही अच्छा किया। कैसा था? हाँ हाँ वही तो एक बार उसी से मिल गया। Congratulations. Sorry. Well done. Thank you. Sir, well done, sir. Thank you. Thank you for all the help. Congratulations. हाँ भाई. Thank you, sir. Congratulations. God bless. हर किसी को नहीं मिलता.